Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we will start new chapter, that is anatomy of flowering plants. It is chapter 6 of our syllabus. Anatomy is the structure of is the study of uh, internal structure of an organism. Study of internal structure. It is the study of internal structure. Study of internal structure. Study of internal structure of an organism is called anatomy. Now, in this chapter, we will study what is the internal design of plants, their various tissues. So far as their these anatomical features of their different tissues are concerned, we will deal with those features in this chapter. First of all, we will see what is tissue. We can say that a tissue is a group or collection of similar or dissimilar cells that perform or help to perform a common function and have a common origin. Uh, in a in an organism, there are different organs that are different in their internal structure. That are different in their internal structure. For example, we will take a dicot plant and a monocot plant. They are both are plants, although, but they differ in their internal structure. Different organs in an organism also differ in their internal structure. In the same way, in the plant community, different plants, for example, dicots differ from monocots. This difference in their internal structure adds features for their adaptation in different environments due to their this structural feature, internal structure. So this anatomy helps organisms to adopt in a particular type of environment. Uh, so far as this tissue is concerned, a tissue is a group of और a collection of similar और dissimilar cells, चाहे वो सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे, जो एक कॉमन फंक्शन अंजाम देते हैं या एक फंक्शन अंजाम देने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए टिश्यू. In plants, tissues are divided into three categories. Tissues are divided into three categories. One is meristematic tissue. Second is permanent tissue, and third one is secretory tissue. This meristematic tissue, we will study it in detail. Permanent tissue is of two types. One is simple permanent tissue, second is complex permanent tissue. We have to study these one by one. Simple permanent tissue is that which is composed of similar type of cells, or only one type of cells. This is called simple permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो बनावट होती है ये एक ही किस्म के सेलों का बना होता है. इसके तीन किस्में हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा. जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दैट इज मेड अप ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स. फॉर एग्जांपल जाइलम है, फ्लोएम है, वो मुख्तलिफ किस्म की सेलों का बना हुआ है. Now leave it, we will proceed to our
today's topic, that is meristematic tissue. पहले आप याद रखेंगे टिश्यू क्या है. टिश्यू एक इज अ कलेक्शन और ए ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट हेल्प टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन. Now, tissues are categorized into three categories in plants, that is meristematic tissue, permanent tissue, and secretory tissue. First one, we will deal with first one, that is this meristematic tissue. Actually, I will tell you the word meristem is derived from a Greek word which meristos. Meristos is a Greek word which means divisible, which can be divided. So in plants, growth is mainly restricted to specialized regions of active cell division called मेरिस्टम्स. प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो कुछ रीजन्स में होता है रेस्ट्रिक्ट. उन रीजन्स को मेरिस्टमेटिक रीजन्स कहते हैं. जो ये मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन में रहते. दीज मेरिस्टमेटिक सेल्स रिमेन इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस डिवीजन, और in other words we can say that these retain the power of division. इनमें power of division होता है. मेरिस्टमेटिक सेल्स में power of division होता है, ये डिवाइड करते हैं और प्लांट का ग्रोथ होता है. प्लांट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टम्स होते हैं. कुछ मेरिस्टम्स occur at tips of roots and shoots. कुछ मेरिस्टम्स प्लांट्स में रूट टिप में होते हैं या शूट टिप में होते हैं और वहाँ से प्राइमरी टिश्यूज बनते हैं. इनको एपिकल मेरिस्टम्स कहते हैं, विच आर प्रेजेंट एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स. दीज आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम्स. फॉर एग्जाम्पल रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम. रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है दैट इज फाउंड एट द टिप ऑफ रूट, while shoot apical meristem occupies most distinct region of the stem axis, that means shoot apex. जो ये एपिकल मेरिस्टम होता है ये रूट के ये शूट के एपेक्स पे और रूट के एपेक्स पे या शूट टिप पे और रूट टिप पे होता है. इससे पहले कि हम आगे जाएं मैं आपको कुछ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा. ये मेरिस्टमेटिक सेल्स जो होती हैं ये राउंडेड भी होती हैं इन शेप. दीज में भी ओवल, दीज में भी पॉलीगनल और रेक्टेंगुलर इन शेप, और ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं. दीज सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड. ये आप याद रखेंगे. दीज में भी ओवल शेपर, दीज में भी पॉलीगनल और रेक्टेंगुलर एंड और कंपैक्टली अरेंज्ड. इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है. नंबर 2, इनमें थिन और इलास्टिक प्राइमरी वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है. वैक्यूल्स इनमें स्मॉल होते हैं और न्यूक्लियाई लार्ज होते हैं. इनमें रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है. These cells do not store reserve food material. जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लास्ट्स की शक्ल में, और इसमें वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज पोरली डेवलप्ड और क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं. और इनमें एक खास बात जो है वो ये डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में. पर्टिकुलर प्लेन मीन्स इनका डिवीजन का एक अपना प्लेन होता है जहाँ से ये डिवाइड करते हैं. जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू, अब इसके टाइप्स हैं. मैंने बोला आपको अगर हम पोजीशन प्लांट बॉडी में ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी देखेंगे तो इस मेरिस्टम की 3 किस्में हैं. वन इज एपिकल मेरिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन इन द प्लांट बॉडी.
These meristems are of three types. One is apical meristem. Apical meristem क्या होता है? That is present or located at the growing tips of shoots and roots. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम. इनसे लीनियर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन होता है. फॉर एग्जांपल एक मेरिस्टम है, ये शूट के एपेक्स में मौजूद है, इससे शूट का ग्रोथ होगा. दूसरा है रूट एपिकल मेरिस्टम, इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, इससे लीनियर ग्रोथ होगा इसका शूट का, इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम. रूट एपिकल मेरिस्टम, इससे रूट का ग्रोथ होगा, linear growth होगा of an organ, whether it may be a root or it may be shoot. So on the basis of position I told you there are three types of meristems. One is apical meristem, second is intercalary meristem, and third one is lateral meristem. पहला तो मैंने आपको बताया जो टिप्स पे या एपेक्स पे होता है, रूट एपेक्स या शूट एपेक्स पे, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम. दूसरा, अब ये एपिकल मेरिस्टम हो गया. अब दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम. वो मेरिस्टम जो मौजूद होता है बिटवीन रीजन्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़. फॉर एग्जांपल जो यहाँ से परमानेंट टिश्यू है, कहीं ये परमानेंट टिश्यू है, यहाँ भी परमानेंट टिश्यू है, इस रीजन में जो मेरिस्टम मौजूद होगा उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम. इसको बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम जो मौजूद होता है परमानेंट टिश्यूज़ के रीजन्स में, मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में, उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम. जो एपिकल मेरिस्टम है और ये इंटरकैलरी मेरिस्टम, इनको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम. क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ ए प्लांट. वो प्लांट में पहले से ही मौजूद होते हैं, अर्ली स्टेज से ही, और इससे प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है. इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम. अब one more type is that is lateral meristem. That is third type is lateral meristem. लेटरल मेरिस्टम में क्या होता है? It consists of lateral meristem consists of initials which divide mainly in one plane and result in the increase in diameter of an organ. इससे गर्थ, जिसको हम बोलते हैं, इससे प्लांट की या प्लांट ऑर्गन की गर्थ में इंक्रीज होती है, मोटापे में इंक्रीज होता है. इसका एग्जांपल है कैम्बियम है, कॉरक कैम्बियम है, मार्जिनल मेरिस्टम है जो लीव्स में होता है. ये है थर्ड टाइप. तो आप याद रखेंगे फर्स्ट दो, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम. जो मैंने बोला एपिकल मेरिस्टम रूट एपेक्स या शूट एपेक्स में, या इंटरकैलरी मेरिस्टम जो इन रीजन्स में परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में मौजूद होता है, इनको प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं क्योंकि ये प्लांट में अर्ली स्टेज में मौजूद होते हैं. जो ये लेटरल मेरिस्टम होता है, ये उन इनिशल्स का बना होता है जो एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ पेरिकलाइनल प्लेन. पेरिकलाइनल प्लेन में ये ऐसे डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ऐसे डिवाइड करेंगे. इससे प्लांट या प्लांट ऑर्गन की गर्थ में इंक्रीज होगी, डायमीटर में इंक्रीज होगी. इसका एग्जांपल है कैम्बियम होता है, कॉरक कैम्बियम होता है, या कुछ लीव्स में मार्जिनल मेरिस्टम होता है. अब एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा. जो एपिकल मेरिस्टम है वो मैंने आपको पहले ही बोला, वो रूट एपेक्स या शूट एपेक्स मीन्स वो टिप्स पे होता है, ग्रोइंग टिप्स या ग्रोइंग एपाइसिस पे होता है.
रूट्स और शूट्स के। जो ये लेटरल मेरिस्टम होता है, ये इट इज़ लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ ए प्लांट ऑर्गन, ये प्लांट ऑर्गन के साइड में होता है। जो ये एपिकल मेरिस्टम होता है ये प्राइमरी होता है। जो ये लेटरल मेरिस्टम इट इज़ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इन ओरिजिन। जो ये मैंने आपको बोला एपिकल मेरिस्टम इससे लेंथ में इंक्रीज होता है। जो ये लेटरल मेरिस्टम होता है इससे गर्थ में या डायमीटर में इंक्रीज होता है। इसमें एग्जांपल है एपिकल मेरिस्टम में रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। इसमें जो है वो है कैम्बियम, कॉरक कैम्बियम लेटरल मेरिस्टम में आता है, कॉरक कैम्बियम, कैम्बियम और मार्जिनल मेरिस्टम। फॉर एग्जांपल जो ये रीजन है, ये वाला रीजन दिस इज एपिकल मेरिस्टम का रीजन है। ये है शूट एपेकस, यहाँ जो रीजन है दिस इज एपिकल मेरिस्टम। अब इंटर कैलरी मेरिस्टम, ये वाला रीजन जो है दिस इज इंटर कैलरी मेरिस्टम, इट इज लोकेटेड बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। दिस वन इज ऑल्सो इंटर कैलरी मेरिस्टम। यहाँ नोड है, यहाँ जो मेरिस्टम है ये इंटर कैलरी मेरिस्टम है। अब लेटरल मेरिस्टम, ये वाला है लेटरल मेरिस्टम। जब इसमें डिवीजन होता है ऐसे, मान लीजिए ये एक मेरिस्टमेटिक सेल है, ऐसे ऐसे डिवीजन होगा, फिर यहाँ बन गई सेल, यहाँ दूसरी सेल, ऐसे डिवीजन होगा, इससे प्लांट की गर्थ में इंक्रीज होगी। इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। अब आपको पता है प्लांट टिश्यू क्या है, टिश्यूज़ के टाइप्स कितने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या है। ये आपको मेरिस्टेमेटिक के बारे में हो गया। अब मैं आपको एक और मेरिस्टम की एग्जांपल दे दूंगा। जो पहला किस्म था इट वाज बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द बॉडी, एपेक्स पे था या साइड में था। रूट एपेक्स या शूट एपेक्स में उसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। बिटवीन परमानेंट टिश्यूज उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब जो लेटरल मेरिस्टम वो जो ओनली वन प्लेन में डिवाइड करता है, जो गर्थ में इंक्रीज करता है। अब ओरिजिन की बुनियाद पर बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट मेरिस्टम्स आर आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज प्रो मेरिस्टम। प्रो मेरिस्टम वो होता है, प्रो मेरिस्टम जो एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रो मेरिस्टम, या इसको प्राइमोरियल और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी कहते हैं। ये वहाँ मौजूद होता है जहाँ से एक प्लांट ओरिजिनेट होता है, जहाँ से फाउंडेशन एक ऑर्गन की होती है, उसी को प्रोमेरिस्टम कहते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोमेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओरिजिन। सेकंड वन इज प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम जो है it is originates from embryonic stage. This originates from embryonic stage from promeristem or embryonic meristem of the plant, जिससे फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज प्लांट बॉडी के बनते हैं। इसका एक टाइप है प्रोटोडर्म, दूसरा है प्रोकेम्बियम, फिर है और तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टम, जिससे कॉर्टेक्स और पित्त वजूद में आता है। जो प्रोकेम्बियम है उससे बनते हैं प्राइमरी वास्कुलर एलिमेंट्स। जो प्रोटोडर्म है वो प्रोड्यूस करता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये आपको पढ़ना है अलग अलग से। फिर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। अब सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है, इट originates एज ए न्यू मेरिस्टम फ्रॉम द परमानेंट टिश्यूज। ये नया मेरिस्टम वजूद में आता है परमानेंट टिश्यू से, जिसमें डिफरेंस पहले से ही डिफ्रेंसिएशन होती है, उनमें अपना प्रोमेरिस्टम नहीं होता है।
ये उस वक़्त प्लांट बॉडी में वजूद में आता है जब ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट होता है इंटरफेस्कुलर रीजन्स में डाइकोटस में जब सेकेंडरी ग्रोथ की ज़रूरत होती है। कॉरक कैम्बियम जब पेरिडर्म या हीलिंग ऑफ वुंड्स में वजूद में आता है। इट ओरिजिनेट्स एज पर नीड। कैम्बियम जो होता है रूट में या एक्सेसरी रिंग्स जो होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टम में हो। दिस आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम। ये था इस मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे।